एबीपी न्यूज़ के फेसबुक और यूट्यूब लाइव पर आपका स्वागत। ये खिलाड़ी है तो सर्बिया के, लेकिन बादशाह है ऑस्ट्रेलिया की। नोवाक जोकोविच का क्या कहना है? जोकोविच फिर से जीत लिया है ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब। 8वीं बार ये खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने और ये 17वीं ग्रैंड स्लैम टाइटल है और ही इज़ वेरी क्लोज टू रॉजर फेडरर एंड राफेल नडाल एट द प्रेजेंट मोमेंट। जो रॉजर फेडरर है वो 20 बार जीत चुके हैं ग्रैंड स्लैम खिताब और राफेल नडाल 19 बार, लेकिन एज इज़ ऑन द साइड ऑफ नोवाक जोकोविच। और इस बार पाँच सेट में मैच वापस गया और डोमिनिक थीम को, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को हरा दिया है जोकोविच ने। और वेन एवर द मैच गोज टू 5 सेटर, जोकोविच इज़ ऑलवेज अ किंग। क्या कहेंगे गौतम, क्योंकि जैसा कि देखने को मिला था विंबलडन में, बिल्कुल, when he was playing a 5-setter against Roger Federer. इससे पहले I can remember in 2012 Djokovic played a 5-setter against Rafael Nadal. So always he won those 5-setters. क्या करिश्माई खिलाड़ी है और डोमिनिक थीम ने यहाँ ज़रूर फाइट बैक की, बिल्कुल, लेकिन whenever the match goes to 5-setter, Djokovic always special. Yeah. So Kuntal, you summed it. I think so. He is the king of Australia, though he doesn't belong to Australia, and the record is absolutely straight. If you talk about clay, Nadal is called the king of clay. I won't be wrong in saying if you call the king of hard courts, he is the emperor of hard courts. Australia Open में ये 8वीं जीत ओपन एरा के सबसे सक्सेसफुल प्लेयर सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ये उस एरा में कम्पीट कर रहे हैं जहाँ आपके रॉजर फेडरर है, राफेल नडाल रह चुके, एंडी मरे रह चुके। When Federer and Nadal both already were established players and they were winning titles one after another. और दर्शकों को और एक स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ, नोवाक जोकोविच जो है वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन में 89% मैच अब तक जीत चुके हैं। सिर्फ 8 ही मैच when he made his debut since then he just lost 8 मैचेस इतने सालों में। और पहली बार नोवाक जोकोविच जब ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीता था, फाइनल मैच में मुकाबला हुई थी जो विल्फ्रेड सोंगा के साथ, जो कि फ्रेंच खिलाड़ी है, उनको हराकर 4 सेटर का मैच था और यहाँ 5 सेट। तो जोकोविच जितना भी साल आगे बढ़ रहा है, जोकोविच इज़ लुकिंग इवन मोर फिट और लग रहा है कि और भी ही इज़ having more hunger to win titles or Grand Slam titles. क्या कहेंगे, क्या आपको दिख रहा है कि जोकोविच can end up being the most successful tennis player in the history of tennis, क्योंकि age is on his side और अगर 5-6 साल खेलेंगे तो और भी 10 Grand Slam जीत सकते हैं if he is fit. Absolutely. So you said he's around about 33. Federer is at the end of the road. I'm not disappointing Federer fans, though he's stretching everybody to the limit, but he's 39 and that's a fact. With Djokovic, what's happened exactly is his fitness is at its very peak. अगर आपको याद होगा, 2011 was a year where Djokovic actually proved himself. 11 and 12 were highly successful years for Djokovic. After that, what happened is that he had a bit of injury concerns and he went a little off the boil. So what was happening in Grand Slams was he was continuously reaching semi-finals and finals, but the title was eluding him. However, he had tremendous belief, much like Nadal, his fierce rival, and he changed his diet to something called a gluten-free diet. He changed his coaching staff. The era where one of the greats was coached by Becker, one had Stefan Edberg. So Djokovic made all those tactical changes. He's come back much more lean and fitter. And one point, Kuntal, which I want to add is in the when he tried with Amelie Mauresmo. Amelie Mauresmo also. And what had happened that if you see the build-up to the Australian Open, he was very successful. He played the ATP finals where he led Serbia to a title. So the form was very good ahead of a Grand Slam. And of course, whenever he comes to the Rod Laver Arena, it's something which he brings to the fore. I think so his game is a all-court players game. क्या होता है कि जैसे हम टेनिस फैंस को बता दें, एक पीट सैम्प्रस होते थे 90s में. He was a serve and volley player. He struggled. He was an all-time great with around about 7 Wimbledon championships, but never won the French. Ivan Lendl, a very consistent baseliner, but never had his mojo in Wimbledon. मुझे याद है गौतम, इवान लैंडल जब पैट कैश के खिलाफ हार गए थे विंबलडन का फाइनल मुकाबला, जब सबको लगा था कि इवन लैंडल कैन विन द टाइटल, तब लैंडल ने कहा था कि ग्रास इज मेंट फॉर द काउज। तो क्योंकि कभी वो जीत नहीं पाए ग्रास कोर्ट में, तो ऐसा ही है
रॉजर फेडरर जैसे खिलाड़ी जो जीते हैं ज़रूर क्ले कोर्ट में, बट क्ले कोर्ट का खिलाड़ी नहीं है। पिच सैम्प्रस जैसे खिलाड़ी क्ले कोर्ट में कभी भी कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन ये जो खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच कमाल के खिलाड़ी है। चारों कोर्ट में वो कंफर्टेबल है और डोमिनेंस दिखाया, लेकिन शायद क्ले कोर्ट में अभी भी नडाल का जो ईरा है वो चल रहा है। लेकिन क्या पता कि जब नडाल एक साल इंजरी हो गया या फिर नडाल जब नहीं खेलेंगे तो जोकोविच फ्रेंच ओपन में भी डोमिनेंस दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी भी कई साल वो खेल सकते हैं। डेफिनेटली जो आपने बोला कि उनके जो आज फाइनल में प्रतिद्वंदी थी डोमिनिक थीम, इवन हैट्स ऑफ टू हिम बिकॉज जोकोविच इज सच अ प्लेयर, इफ यू गिव हिम इंच he will completely take the game of you. And if you see in the context of what's happened in the finals today, थीम ने उनको 5 सेट्स तक खींचा। एक टाइम 4th सेट में मैच ऐसा लग रहा था कि थीम इज वेरी क्लोज टू विनिंग हिज मेडन ग्रैंड स्लैम टाइटल, बट मच टू the young brigade's disappointment and much to the general tennis arena where they were thinking that with a new decade a new young champion will come again. It's a dominance of the old champions. Last time, if I'm not wrong, we saw apart from the big three, if somebody had won the title, that was Marat Safin way back in 2005. After that, it's been a hegemony of Federer, Nadal, Murray and Djokovic. So again, we are coming back to the point that though the big three have the dominance in tennis, किसी ना किसी ऐसे युवा खिलाड़ी को आना पड़ेगा कुंतल जो उनको ग्रैंड स्लैम से चैलेंज कर पाए। आज थीम क्लोज आए, बट मुझे लगता है कि जैसे आप बोल रहे हो कि फ्रेंच ओपन दोबारा नडाल का बेस्टन है, थीम वहाँ भी 2 फाइनल हारे उनसे। सो दीज sometimes they say that stepping stone adversary is the biggest success in a stepping stone, and what happens is हार में भी एक जीत होती है। definitely he'll pull back and come back stronger. ऐसे देखें तो डोमिनिक थीम जो है ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी, वो कई बार ऐसा हुआ कि जो टेनिस सर्किट में बाकी टूर्नामेंट्स है वहाँ जोकोविच, नडाल, फेडरर जैसे खिलाड़ियों को हराए, लेकिन यहाँ जब बात होती है ग्रैंड स्लैम जैसे प्लेटफॉर्म का, वहाँ ये जो खिलाड़ी है फेडरर, नडाल या फिर जोकोविच, वो कहीं ना कहीं जब मैच 4 सेट में 5 सेट में चला जाता है तो कहीं ना कहीं दे कम आउट विनर्स, दे कम आउट ऑन टॉप। तो यहाँ आपको क्या लगा? एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम वाज मेकिंग अ फाइट बैक और जो कैमरा है वो क्लोज शॉट ले रहा था रॉड लेवर का। रॉड लेवर वाज इवन लुकिंग इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ टीम, लेकिन कहीं ना कहीं ये जोकोविच जैसे खिलाड़ी जो होते हैं वो खुद पर इस तरह का बिलीफ रखते हैं, इस तरह का विश्वास रखते हैं। उनको पता होता है कि नहीं, गेम का सबसे अहम मोमेंट जो होगा, डिफाइनिंग मोमेंट जो होगा 5th सेट में या 4th सेट में, वो डिफाइनिंग मोमेंट कहीं ना कहीं आई विल स्नैच दोज डिफाइनिंग मोमेंट्स एंड आई विल स्नैच दोज पॉइंट्स एंड इवेंचुअली द मैच। तो यही शायद जो चैंपियंस है उनको डिफाइन करते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मेंटल रेजिलियंस एंड ग्रिट। चाहे कोई भी बड़ा स्पोर्ट हो, हाफ द बैटल इज वन इन योर माइंड। एंड जैसे आप बोल रहे हो कि फिजिकली अगर देखा जाए, ऑफ कोर्स थीम इज मच यंगर देन जोकोविच एंड ही हैज़ ए एज, बट 32-33 में एक जोकोविच है, एक 34-35 पे नडाल है और 39 पे फेडरर है। वाई दे हैव बीन सो सक्सेसफुल इज दैट दे हैव मेंटेन their bodies very well and they have been very selective. Kuntal, one more very technical point in picking up the right tournaments. Federer has cut short his clay season. He's only focusing on the Wimbledon leg, the US Open, and then he comes back to Australian Open. Similarly, Djokovic also knows that he's got 2-3 years of very good tennis and maybe even more. And if he has to, be at his best, he has to pick and choose the right tournaments. And जैसे आप बोल रहे हैं कि अब मुझे लगता है थीम या जेवरेव या एक और रशियन खिलाड़ी है डैनियल मेडवेडेव, उनको अपना जो मेंटल अप्रोच है, हाउ टू फिनिश ऑफ गेम्स, यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ कॉरिडोर, बट आप 4th सेट में ख़त्म नहीं कर पाए। एंड फॉर द 5th सेट चैंपियन लाइक अ जोकोविच, इफ ही कम्स टू दैट सिचुएशन, ही विल डेफिनेटली हर्ट यू एंड हर्ट यू वेरी बैडली। चलिए, बहुत शुक्रिया। और पहले साल का पहला जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था, दैट इज़ ओवर एंड द चैम्पियन अगेन इज़ नोवाक जोकोविच, जो कि 8वीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब जीत लिया है। एंड दिस इज़ 17th टाइटल ओवरऑल इन ग्रैंड स्लैम टेनिस। तो वो सिर्फ 3 कदम दूर है रॉजर फेडरर से और 2 कदम राफेल नडाल से। तो ये था पहला ग्रैंड स्लैम मुकाबला साल का। इसके आगे खेला जाएगा फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन टेनिस। और US ओपन में तो नोवाक जोकोविच का दबदबा इससे पहले भी सभी ने देखा। तो अब देखना ये साल किस तरह का परफॉर्मेंस पूरे साल भर कर पाते हैं जोकोविच। इतना ही फेसबुक और यूट्यूब लाइव पर।
इस साल ओलंपिक्स का भी ईयर है एंड टेनिस इज ओलंपिक स्पोर्ट एंड जस्ट टू ब्रिंग इन टेनिस इनटू ओलंपिक पर्सपेक्टिव फेडरर हैज वन अ ब्रॉन्ज फॉर सर्बिया सो जिस टाइप की बैटल चल रही है फेडरर इज आल्सो एंडिंग हिज करियर चाहेंगे गोल्ड स्विट्जरलैंड की जीते और द सर्बियन विल वांट टू विन अ गोल्ड फॉर सर्बिया जी बिल्कुल इससे पहले देखा गया था कि रॉजर फेडरर वाज सो कीन टू विन मेडल्स फॉर स्विट्जरलैंड कि वो डबल्स भी खेले इससे पहले स्टैनिस्लास वारिंका के साथ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गौतम ने कि नडाल हो या फिर जोकोविच हो या फिर फेडरर हो तीनों ही चाहेंगे सर्बिया या फिर स्विट्जरलैंड या फिर स्पेन के लिए ओलंपिक का मेडल जीतने के लिए इस साल टोक्यो में।